السلام علیکم۔ میری طبیعت کئی دنوں سے بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی اور ہر وقت جی متلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نقاہت اتنی بڑھ گئی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی میری کمرے میں چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر بلا کی فکر مندی اور پریشانی تھی، جیسے ان کی اپنی جان پر بن آئی ہو۔ وہ فوراً میرے سرہانے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مریم، میں نے کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کرو۔ تم اس وقت اپنی نہیں بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے کی امانت ہو۔ تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانیاں ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی اس ممتا اور تڑپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، کیونکہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی یا طنز یا تیر چلانے والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ اور میرے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، اور جب بھی میں اداس ہوتی تو وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر مجھے دلاسا دیتی رہتی۔ اب بھی جب میری طبیعت بگڑی تو انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور اسلم کو آواز دی، جو پہلے ہی دروازے پر کھڑا میری خیریت جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ اسلم نے بھی بڑے ادب اور ہمدردی سے کہا کہ بھابی، آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گاڑی نکال لی ہے اور ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا ہے۔ اب میں روز آپ کو چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا، اور آپ کی تمام ادویات اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ ساس امی نے اسلم کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی کہ دیکھا مریم، اسلم کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، یہ دیور نہیں تمہارا سگا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا وارث بالکل تندرست پیدا ہو، اس لیے اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گی، اور اسلم روز تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ ان دونوں کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میرے شوہر کی کمی ان دونوں کے روپ میں پوری کر دی ہے۔ مجھے اس وقت ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے پناہ محبت اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی دراصل کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ اسلم نے بڑے احترام سے میرا پرس پکڑا اور مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا، جہاں سے میرے اس عجیب و غریب سفر کا آغاز ہونا تھا، جس نے میری زندگی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دینی تھی۔ اسلم مجھے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس نے بڑے پیار اور احتیاط سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر ہسپتال کے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بٹھایا اور خود لائن میں لگ کر میرا پرچہ بنوایا اور ڈاکٹر کا نمبر لیا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف میرے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے میرا ابتدائی معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا تو اسلم خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الٹرا ساؤنڈ روم تک لے کر گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ اسلم اب میں ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی اپنائیت سے بولا کہ بھابی، احتیاط میں ہی بھلائی ہے، آپ بس خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے خود مجھے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیر سرگوشیوں میں بات چیت کی، جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اسی لیے یہاں کا عملہ اور ڈاکٹر سب میرے لیے اجنبی تھے۔ اس سے پہلے میرا چیک اپ شہر کے دوسرے ہسپتال میں ہو رہا تھا، لیکن اسلم نے بضد ہو کر ہسپتال تبدیل کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہسپتال زیادہ بڑا اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں۔ چونکہ وہ خود اتنا مطمئن اور پرجوش تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی تھی کہ میرا دیور میرے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کر کے لایا ہے۔ ڈاکٹر نے مشین کے پاس آتے ہی مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا، اور میں نے جب اسے اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ کو شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لی مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھینتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوشی کے اس گہرے سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی ہو، لیکن اس سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی، جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز میرے دیور اسلم کی تھی، جو بڑی دھیمی اور پراسرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سرہانے کھڑا ہو کر میری حالت کا جائزہ لے رہا ہو اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا ہو، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی
मुहिम हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो कमरे में वो मखसूस बू और मशीनों की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की तो मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने इधर उधर देखा लेकिन असलम कमरे में मौजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ वो डॉक्टर खड़ा कुछ कागजात पर दस्तखत कर रहा था। मैंने लड़खड़ाती आवाज में डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ था और मैं क्यों बेहोश हो गई थी। तो डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से मेरी तरफ देखा और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि कुछ नहीं मरियम बीबी, बस शदीद कमजोरी की वजह से आपका बीबी लो हो गया था और आप कुछ देर के लिए गुनूदगी में चली गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये हमल के दौरान अक्सर खवातीन के साथ होता है। मैंने अपने भारी सर को हाथों में थामा और बेड से उतरकर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची तो सामने ही असलम परेशानी की आलम में टहल रहा था। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरा हाथ थामकर बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछने लगा कि भाभी अब आप कैसी हैं? आपको अंदर अचानक क्या हुआ था? मैं तो बाहर बैठा आपकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे गुनूदगी के आलम में उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी का जो एहसास हुआ था वो बहुत गहरा था। मैंने शक भरे लहजे में असलम की आंखों में झांकते हुए पूछा कि असलम क्या तुम अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे करीब ही खड़े हो। मेरी ये बात सुनकर असलम के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी लहर दौड़ी और उसने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बड़ी सफाई से इनकार में सर हिलाया और कहने लगा कि भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा वहाँ अंदर क्या काम था? वहाँ तो लेडी डॉक्टर और नर्सें मौजूद थी और आपकी हालत देखकर शायद आपको कोई वहम हुआ है। मैं तो पूरे वक्त इसी बेंच पर बैठकर आपका इंतजार करता रहा हूँ। असलम का लहजा इतना पूरे एतमाद था कि मैं खुद अपने एहसास पर शर्मिंदा होने लगी और मुझे लगा कि शायद बेहोशी की दवा या कमजोरी की वजह से मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो आवाज अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी जिसने मुझे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया था। मैं घर पहुंची तो मेरी सास बेचैनी के आलम में दरवाजे के पास ही टहल रही थी, जैसे वो कब से मेरी वापसी के मुंतजिर हों। मुझे देखते ही उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से मुझे कमरे में लेकर गईं। उन्होंने फौरन मुलाजमा को आवाज देकर मेरे लिए ताज़ा जूस बनाने का कहा और खुद मेरे पलंग के पास बैठकर मेरे पाँव पर हाथ रखकर उन्हें दबाने लगी। उनकी इस मोहब्बत और खिदमत ने मुझे एकदम ही शर्मिंदा कर दिया और मैंने तड़प कर अपने पाँव पीछे खींचने की कोशिश करते हुए कहा कि अम्मा खुदा के लिए ऐसा ना करें, आप मेरे पाँव मत दबाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप तो मेरी माँ की जगह हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मरियम ऐसी बातें ना करो, तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, तुम मेरे मरहूम बेटे की बेवा हो और इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज भी है और मेरी खुशी भी। बस तुम खुश रहा करो, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो बहुत बेचैन से दिखाई दे रही थी और फिर उन्होंने बड़ी राजदारी और फिक्रमंदी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या सब ठीक है ना? मैंने उनका हाथ थामकर तसल्ली दी और कहा कि अम्मा डॉक्टर ने सब कुछ सही होने की खबर दी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस उन्होंने मेरी हालिया कमजोरी का जिक्र किया है और साथ ही ये हिदायत दी है कि हर थोड़े दिनों बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाना होगा ताकि किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली का इजहार नमूदार हुआ और उन्होंने फौरन असलम की तरफ देखा जो दरवाजे में खड़ा ये सब सुन रहा था। सास ने मुझे जबरदस्ती मिल्क शेक पिलाया और अपने हाथों से तकिया दुरुस्त करके मुझे लिटा दिया। जब मैं सुकून से लेटी और कमरे में खामोशी छाई तो मेरी आंखों के आगे मेरे मरहूम शोहर का चेहरा झिलमिलाने लगा। उनकी यादों ने मुझे घेर लिया। आज से 2 साल पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की बहारें इतनी जल्दी खिजा में बदल जाएंगी और ये खुशियों भरा घर मेरे लिए एक पूरा सरार कुफ्स बन जाएगा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं इस घर में पहली बार कदम रखा था। मैं एक कोस्त घराने की लड़की थी जो बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरे शोहर जाहिद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत और चाहत थी वो मुझे दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत बना देती थी। जाहिद का इस घर में खास मकाम था। वो अपनी माँ और छोटे भाई असलम पर जान छिड़कते थे। उनके लिए उनकी माँ का हुक्म पत्थर पर लकीर था और वो अक्सर मुझसे कहते थे कि मरियम मेरी माँ ने बहुत दुख झेल कर मुझे पाला है, इसलिए उनकी खिदमत और उनका एहतराम हम पर फर्ज है। जाहिद अपनी सारी कमाई और कारोबार का हिसाब किताब अपनी माँ के हाथ में रखते थे और असलम की हर फरमाइश पूरी करना उनका अव्वलीन मकसद होता था। मुझे याद है जब भी हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते तो जाहिद सबसे पहले अपनी माँ से इजाजत लेते और अक्सर वो असलम को भी हमारे साथ ले जाते थे। वो कहते थे कि भाई अकेला घर में बोर हो जाएगा, उसे भी साथ ले चलते हैं। जाहिद की इसी दरिया दिली और खानदान से मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया था। वो रातों को देर तक बैठकर अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते और कहते थे कि मरियम ये जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ ये सब तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चों के लिए है। वो अपनी माँ के पाँव दबाते और उनकी हर बात पर सर तस्लीम खम कर देते थे।
उनके नजदीक उनका भाई असलम उनका बाजू था और वो अक्सर असलम के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते थे। सास अम्मी भी उस वक्त मुझ पर बहुत शफकत करती थी। वो मुझे अपने पास बिठाकर जाहिद के बचपन के किस्से सुनाती थी और कहती थी कि मरियम तुम इस घर की बरकत हो। जाहिद के वालिद के जाने के बाद इस घर की रौनकें लौट आई हैं। उन 2 सालों में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि इस मोहब्बत के पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है। जाहिद अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस के तमाम कागजात अलमारी में नहीं बल्कि अपनी माँ की तहवील में रखते थे। उनका कहना था कि माँ से ज्यादा काबिल एतबार हस्ती और कौन हो सकती है। वो दिन रात मेहनत करते ताकि अपनी माँ को हर आसाइश दे सके और असलम को किसी चीज की कमी ना हो। मैं भी उनकी इस सोच से बहुत मुतासिर थी और खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला और रिश्तों की कदर करने वाला जीवन साथी मिला है। जाहिद अक्सर हंसते हुए कहते थे कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम परेशान ना होना, मेरी माँ और असलम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वो अपने भाई पर इस कदर अंधा एतबार करते थे कि कारोबार के कई अहम कागजात पर असलम से भी दस्तखत करवाते थे। मुझे क्या मालूम था कि जिन रिश्तों पर जाहिद को इतना फख्र था वही रिश्ते उनके जाने के बाद अपनी असलियत दिखाएंगे। उन 2 सालों में हमने साथ में बहुत से ख्वाब देखे थे। जाहिद को बच्चों से बेइंतहा लगाव था, पर जब उन्हें मेरी उम्मीद से होने की खबर मिली तो वो खुशी से निहाल हो गए थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और सास अम्मी के पांव छूकर दुआएं ली थी। वो वक्त मेरी जिंदगी का सुनहरा तरीन दौर था जब उस घर की फिजाओं में सिर्फ कहकहे और प्यार की खुशबू रची बसी थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और अचानक जाहिद का एक हादसे में चले जाना मेरी दुनिया अंधेर कर गया। जिस वक्त जाहिद की मैयत एम्बुलेंस से उतारकर घर के सहन में रखी गई तो जैसे पूरी कायनात ही साकित हो गई थी। एक पल में वो घर जो खुशियों का गहवारा था मातम कदा बन गया और हर तरफ ऐसा कोहराम बर्पा हुआ कि कलेजा मुंह को आने लगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही जाहिद है जो अभी चंद घंटों पहले मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमकर घर से बाहर निकला था और हम आने वाले कल के ख्वाब बुन रहे थे। मैं दीवानावार उनके साकित वजूद की तरफ लपकी, लेकिन औरतों के हजूम ने मुझे जकड़ लिया। किसी ने मेरी कलाइयों को बेदर्दी से मरोड़कर वो रंगीन चूड़ियां तोड़ डाली जिनकी खनक जाहिद को बहुत पसंद थी। चूड़ियों के टूटने की आवाज मेरे दिल के टूटने जैसी थी। फिर किसी ने मेरे सर से वो रंगीन दुपट्टा नोच लिया जो मेरी खुशबख्ती की अलामत था और मेरे कंधों पर एक सफेद बेरंग चादर डाल दी गई। वो लम्हा जीते जी मर जाने जैसा था जब मुझसे मेरा सुहाग छीना जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी कि देखो जाहिद अभी जाग जाएगा, अभी वो मुझे पुकारेगा, लेकिन उनके बंद होते हुए लब और वो सफेद कफन सच्ची गवाही दे रहे थे कि मेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है। सास अम्मी धाड़े मार मार कर रो रही थी और असलम निढाल होकर जाहिद के कदमों से लिपटा हुआ था। हर कोई मुझे तरस भरी नजरों से देख रहा था जैसे मैं कोई जिंदा लाश हूँ। मुझे वो मंजर आज भी याद था जब गुस्ल के बाद उनका चेहरा आखिरी बार दिखाया गया तो मुझे लगा कि मेरी तमाम रंगीनियां और मेरी सारी उम्मीदें इस ताबूत के साथ ही दफन होने जा रही हैं। वो शख्स जो मेरे हर दुख की ढाल था आज खुद मुझे उम्र भर का दुख देकर खामोश हो गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी से खुशबुएं रुखसत हो गईं और मैं कैसी वीरान राह पर निकल खड़ी हुई जहां सिर्फ अंधेर और तन्हाई मेरा मुकद्दर थी। जाहिद के जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने मायके चली जाऊं और अपने वालिदैन के साए में इस गम को हल्का करूं। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे और वो मुझे लेने के लिए आए थे। वो बार बार मेरी सास से कह रहे थे कि अब जब जाहिद नहीं रहा तो मरियम का यहाँ अकेले रहना मुश्किल होगा, हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि ये अपने मायके में सुकून से रह सके। मगर मेरी सास ने कमाल की अपनाइयत दिखाई और साफ मना कर दिया। उन्होंने भराई हुई आवाज में मेरे वालिदैन के सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए मुझसे लिपट गई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे गले लगाते हुए कहा कि आप लोग ये क्या कह रही हैं? मरियम अब सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है और इसकी कोख में मेरे बेटे की आखिरी निशानी यानी मेरी नस्ल की अमानत है। मैं अपनी इस बेटी को अपने से दूर कैसे कर दूं? इस नाजुक वक्त में जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगी? नहीं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी और इसे पलकों पर बिठाकर रखूंगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे वालिदैन को यकीन दिलाया कि जितना प्यार उसे यहाँ मिलेगा वो कोई और नहीं मिल सकता। मेरी सास ने अपना कहा हुआ हर लफ्ज सच कर दिखाया और वाकई मुझे सर आंखों पर बिठा लिया। वो दिन भर मेरे गिर्द घूमती रहती और हर वक्त मेरा हाल पूछती थी। उन्होंने घर की मुलाजमत को सख्त हिदायत दे रखी थी कि मरियम को कोई काम नहीं करने देना और इसकी हर फरमाइश पूरी करनी है। वो खुद किचन में जाकर मेरे लिए अपनी निगरानी में ताकत बख्श खाने तैयार करवाती और जब तक मैं एक एक निवाला ना खा लेती वो मेरे पास से नहीं उठती थी। मुझे अक्सर लगता था कि शायद जाहिद की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए बेइंतहा ममता भर दी है। वो रात को सोने से पहले मेरे कमरे में आती और मुझे दूध का गिलास पिलाकर खुद कंबल उड़ाती थी। असलम भी अपनी माँ के नक्श कदम पर चल रहा था और एक ताबेदार भाई की तरह मेरी हर जरूरत का सामान बाजार से लाकर देता था। उनकी इस बेलोस मोहब्बत ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और मैं अपनी सास के पास ही रहना चाहती हूँ। मेरी सास ने वाकई दिन रात एक कर दिया था। उनकी ममता की छांव तले मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होता था कि मैं किसी दुख की गिरफ्त में हूँ। वो सारा दिन मेरे कमरे के चक्कर लगाती, कभी मेरे बालों में तेल लगाती तो कभी अपने हाथों से मुझे लुकमे बनाकर खिलाती। जब मोहल्ले की औरतें
اور دور پار کی رشتے دار خواتین تعزیت کے لیے آتی اور میری ساس کی یہ خدمت دیکھتی تو وہ رشک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہتی کہ مریم بی بی تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ صفت ساس ملی ہے، ورنہ آج کل کی تو مائیں اپنی سگی بیٹیوں کا اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا یہ تمہارا رکھ رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی کڑی دھوپ میں ایک گھنا سایہ عطا کر دیا ہے۔ میری ساس ان عورتوں کے سامنے اکثر رو پڑتی اور کہتی کہ یہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اب زاہد کے بعد یہی میری سب کچھ ہے، میں اپنی خوش نصیب بہو کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میرا دیور اسلم بھی کچھ کم نہ تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا، بھابھی بھابھی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی وہ بازار سے میرے لیے تازہ ترین پھل چن کر لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے آتا۔ وہ میری ادویات کے نسخے سنبھال کر رکھتا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے یاد دلاتا کہ بھابھی اب آپ کی فلاں گولی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی یہ فکر مندی دیکھ کر مجھے اکثر اپنا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابھی زاہد بھائی تو چلے گئے لیکن میں ان کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اسلم کی اس تابعداری اور ساس امی کی بے پناہ محبت نے میرے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مل کر میرے ہر دکھ کا مداوع کر رہے تھے اور میں ان کے خلوص کے دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زاہد کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ان دونوں کے روپ میں مجھے مل رہا ہے۔ گھر کی فضا اتنی پرسکون اور محبت سے بھرپور تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے باقی ایام انہی کے سہارے گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام پھل، یہ ادویات اور یہ میٹھی باتیں دراصل ایک بہت بڑے جال کے مہرے ہیں، اور جس محبت پر میں ناز کر رہی تھی وہی میرے ہوش و حواس چھیننے کی پہلی سیڑھی تھی۔ شوہر کی یادوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کی شعائیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ بستر چھوڑا اور جب کمرے سے باہر نکلی تو پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نقاہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی وزنی پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ میں اسی حال میں لڑکھڑاتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ گھر کی پرانی ملازمہ ماسی زہرا دبے پاؤں میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور رازداری تھی۔ میں نے اس سے ساس کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بی بی جی وہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، اور اسلم صاحب تو صبح سویرے ہی کاروبار سنبھالنے کے لیے دفتر جا چکے ہیں۔ وہ خود ہی میرے پاس نیم گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی اور بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی دیواروں کے پیچھے سے ہمیں سن رہا ہے۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور پھر جھک کر بالکل میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ بی بی جی اپنا بہت خیال رکھا کرے، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ملازمہ کی اس پراسرار اور اچانک کہی گئی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلکتے چھلکتے بچا۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر زاہد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے گھریلو حالات بہت ناسازگار ہیں، اس کے بچے بیمار رہتے ہیں اور شوہر بے روزگار ہے، اس لیے میں چھپ کر اسے مالی مدد بھی دیتی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا پورا دھیان رکھتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ لیکن آج اس کے لہجے میں جو خوف اور وارننگ تھی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ زہرا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف ڈال کر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ ایک وفادار ملازمہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کیا سچ ہے جو میری معصوم آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ میری ساس جب اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آئیں تو ان کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ زہرا فوراً سہم کر کچن میں روپوش ہو گئی۔ میں نے جب ساس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ایک جھرجھری سی آئی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیکھی تھیں جیسے وہ میرے وجود کے آر پار دیکھ کر میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئے اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور کرختگی تھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مریم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج اتنی جلدی بستر سے کیسے اٹھ گئی؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا خسر پسر کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا ہے اور اب وہ حقیقت اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ رہی تھی کہ کیا پکانا ہے۔ ساس امی میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہنے لگی کہ مریم بیٹی، زاہد نے زہرا کو بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ سچ کہوں تو یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھر
घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करती है और हद से ज्यादा जुबान चलाती है। जाहिद की वजह से मैंने हमेशा इसे बर्दाश्त किया और अब तुम्हारी खातिर चुप हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें ये मुलाजमा बदल लेनी चाहिए। इसकी मौजूदगी मुझे खटकने लगी है। सास अम्मी का अचानक ज़हरा को निकालने की बात करना मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं अम्मा, ज़हरा बहुत पुरानी और वफादार है। वो घर का सारा काम बहुत सलीके और तरीके से करती है। अगर हम किसी नई मुलाजमा को रखेंगे तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा, और आजकल के दौर में वैसे भी किसी अजनबी को घर में जगह देना खतरे से खाली नहीं। मेरी ये बात सुनकर सास अम्मी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और फिर खामोशी से उठकर किचन की तरफ चली गई, मगर उनकी इस खामोशी में एक अजीब सा तनाव था। दोपहर के वक्त जब ज़हरा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके उससे पूछा कि ज़हरा, सच सच बताओ कि तुम सुबह क्या कहना चाह रही थी? तुम्हारा इशारा किस तरफ था? वो कुछ देर खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी की एक अजीब सी झलक थी। फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि बीबी जी, मेरे गुनाहगार कानों ने इस घर की दीवारों के पीछे वो कुछ सुना है जो शायद मैं जुबान पर लाऊंगी तो आप कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। आपको लगेगा कि मैं नमक हरामी कर रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें और हर कदम फूंक फूंक कर उठाएं। मुझे तो यकीन है कि बड़ी बेगम साहिबा मुझे जल्दी इस घर से निकाल देंगी, क्योंकि मैं उनकी आंखों में खटकने लगी हूँ। अब मैं कल यहाँ हूँ या ना हूँ, लेकिन आप अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मुझे एक ऐसी जहनी कश्मकश और शशोपन में डाल गई जिसका कोई सिरा मुझे मिल नहीं रहा था। सारा दिन इसी सोच विचार में गुजर गया और शाम के वक्त जब असलम दफ्तर से वापस आया और सास ने मुझे मामूल की वो दवा लाकर दी जो मैं रोजाना खाती थी, तो उसे पीते ही अचानक मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो रहा है और होशो हवास साथ छोड़ रहे हैं। मेरे देवर असलम ने एक लम्हा जाया किए बगैर मुझे सहारा दिया और फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल पहुँचते ही मामूल की कार्रवाई के बाद डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर अल्ट्रासाउंड रूम में भेज दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत हैरान और परेशान थी कि आखिर रोज अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है। मैंने बड़ी बूढ़ियों से सुन रखा था कि अल्ट्रासाउंड की शुआएं नन्हे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं और बार बार ऐसा करना ठीक नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की हिदायत और अपनी बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से मैं खामोश रही। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा खुनूदगी और सर चकराने का एहसास हो रहा था। अल्ट्रासाउंड रूम में कदम रखते ही मुझे वो मखसूस बू महसूस हुई और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं एक गहरी और तारीक बेहोशी की दलदल में उतरती चली गई, लेकिन इस नीम बेहोशी और खुनूदगी के आलम में मुझे अचानक अपने देवर असलम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे वो बिल्कुल मेरे सिरहाने खड़ा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे वजूद के बिल्कुल पास ही है और मुझ पर हावी हो रहा है। ये एक इंतहाई अजीब और खौफनाक एहसास था जिसने मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ा दी। मैं इस बेहोशी के कैद से निकलना चाहती थी, अपनी आंखें खोलकर उसे पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था और मैं अपने आप में कहीं नहीं थी। न जाने कितना वक्त गुजरा और जब मुझे होश आया तो उस कमरे की छत साकित थी और वहाँ सिर्फ मैं और अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ही मौजूद थी। मेरा देवर असलम वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो लेडी डॉक्टर अपनी मशीन बंद करते हुए बड़े स्पॉट लहजे में कहने लगी कि मरियम बीबी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी तंदुरुस्त है। आप बस बिना वजह टेंशन ना लिया करें, आराम किया करें और ज्यादा ना सोचा करें। अगर मुमकिन हो तो दिन में थोड़ी देर के लिए नींद का वक्फा बढ़ा लें। ये कहकर उसने रिपोर्ट मेरे हाथ में पकड़ा दी थी और मैं बोझल कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल आई, जहां असलम बिल्कुल वैसे ही मेरा मुंतजिर था जैसे वो कमरे से बाहर ही बैठा रहा हो। उसके चेहरे पर वही मसनूई फिक्रमंदी थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही मेरी सास ने फिर से ममता का लिबादा ओढ़ लिया और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। माँ से ज़हरा भी खामोशी से मेरी खिदमत में जुट गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बेहोशी के दौरान असलम की मौजूदगी का एहसास, वो आवाजें और ज़हरा की कही हुई बातें मेरे जहन में एक तूफान बर्पा कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इस घर की मोहब्बत भरी दीवारों के पीछे कोई बहुत ही खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जिसका मोहरा मैं और मेरा होने वाला बच्चा है, और अब मुझे खामोश बैठने की बजाय खुद कुछ करना होगा। मैंने अपनी एक करीबी और भरोसामंद सहेली से बड़ी राजदारी से बात की और उससे एक छोटा सा खुफिया कैमरा मंगवाया। मैंने बड़ी महारत से उस कैमरे को अपने हैंड बैग के कोने में इस तरह से नस्ब किया कि उसका लेंस बिल्कुल सामने की तरफ था, लेकिन बाहर से उसे देखना नामुमकिन था। मैंने बार बार उसकी रिकॉर्डिंग चेक की ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे बस उस घड़ी का इंतजार था कि कब मेरा देवर असलम दोबारा मुझे अस्पताल लेकर जाने का कहे। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी हकीकत के करीब पहुंचने वाली हूँ। अगली सुबह जब मैं लाउंज में आई तो वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। असलम ने बड़े प्यार से कहा, भाभी, आज डॉक्टर ने आपको फिर बुलाया है, आपका एक खास टेस्ट होना है, चलिए देर हो रही है। मैंने कांपते हाथों से अपना वो बैग उठाया और उसके साथ गाड़ी में जा बैठी। रास्ते भर असलम मुझसे बहुत हमदर्दी भरी बातें करता रहा, लेकिन अब मुझे उसके हर लफ्ज में एक जहर महसूस हो रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने मुझे फिर उसी अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर बिठाया।
मेरा दिल सीने से बाहर आने को था जब नर्स ने मेरा नाम पुकारा। मैंने अपना बैग इस तरह से अपने सामने वाले स्टूल पर रखा कि उसका रुख बेड की तरफ हो जहां मुझे लेटना था। मैंने खामोशी से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया था। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, डॉक्टर ने वही मखसूस मास्क मेरे चेहरे पर रखा। मैंने खुद को बचाने के लिए हल्की सी मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन उस गैस के असर ने मुझे चंद सेकंडों में ही बेबस कर दिया और मैं एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं होश में आऊंगी और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखूंगी तो सच में मेरे होश उड़ा देगा। होश में आने के बाद मेरा सर हस्बे मामूल किसी भारी पत्थर की तरह बोझल था और नजरें पूरी तरह धुंधला रही थी, लेकिन मेरा तमाम तर ध्यान अपने उस बैग पर था जो सामने वाले स्टूल पर बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ था जैसे मैंने उसे छोड़ा था। मैंने हिम्मत जमा की और डॉक्टर से रिपोर्ट पकड़कर बाहर निकल आई, जहां अशरफ हमेशा की तरह एक फिक्रमंद देवर का रूप धारे मेरा इंतजार कर रहा था। घर वापसी का रास्ता जिंदगी का तवील तरीन सफर लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी इसी वक्त वो रिकॉर्डिंग देखूं, लेकिन मुझे किसी भी तरह अपने जज्बात पर काबू पाना था। घर पहुंचते ही सास ने वही मोहब्बत भरा ड्रामा शुरू किया कि मरियम बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ताकत का खास जूस बनाती हूँ। मैंने खामोशी से सर हिलाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था जब मैंने बैग से वो खुफिया कैमरा निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर चलाई। शुरू के चंद मिनट तो वही मंजर था जो मैं देख चुकी थी, यानी डॉक्टर ने मुझे बेड पर लिटाया और फिर वो मखसूस मास्क मेरे चेहरे पर रख दिया, जिससे मैं चंद सेकंडों में ही बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही मेरा सर एक तरफ ढलका और मैं साकित हुई, कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और मेरा देवर असलम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो हमदर्दी और फिक्रमंदी कहीं नहीं थी जो वो बाहर दिखाता था, बल्कि वहाँ एक वहशतनाक और फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने देखा कि असलम ने अपनी जेब से खास किस्म का इंजेक्शन निकाला और डॉक्टर से मुखातिब होकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, क्या ये इसकी याददाश्त मिटाने के लिए काफी है ना? मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ भी याद न रहे, इसका शोहर कौन था और ये जायदाद किसकी थी। डॉक्टर ने सफाकाना अंदाज में सर हिलाया और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, ये इंजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता इसके असाब को इतना कमजोर कर देंगे कि ये एक जिंदा लाश बन जाएगी और इसे अपने माजी का एक अक्स भी याद नहीं रहेगा। फिर असलम ने एक और शीशी निकाली और डॉक्टर से कहा कि अब वो काम करो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, यानी इसके बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर खत्म करना है ताकि किसी को शक भी ना हो और सब यही समझें कि कमजोरी की वजह से बच्चा जाया हो गया है। जैसे ही बच्चा जाएगा, सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी और माजी के कब्जे में आ जाएगी, क्योंकि जाहिर तो वैसे भी हमारा सगा नहीं था, उसने सारी जायदाद पर कब्जा कर रखा था। अब उसका नामो निशान मिटाने का वक्त आ गया है। उसी दौरान असलम का फोन बजा और उसने स्पीकर ऑन किया तो दूसरी तरफ मेरी सास की जहरीली आवाज गूंजी, जो बड़े इश्तियाक से पूछ रही थी कि असलम क्या काम हो गया है, उस लड़की को इंजेक्शन लग गया है ना? असलम ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी अम्मा जी, अब ये मरियम कभी होश में नहीं आएगी और ना ही इसे वो जायदाद याद रहेगी जो जाहिद उसके नाम कर गया था। बस चंद दिन की बात है, ये बच्चा भी खत्म हो जाएगा और यूरत भी किसी पागल खाने की जीनत बनेगी। ये सब देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा और मेरी रूह कांप गई कि जिन रिश्तों को मैं अपनी पनाह समझ रही थी, वही मेरे और मेरे मासूम बच्चे के कातिल निकले। अब मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे क्यों रोज अस्पताल लाते थे और वो मास्क दरअसल मुझे मौत की नींद सुनाने के लिए कड़ी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने मरे हुए शोहर की तस्वीर की तरफ देखकर तहैया कर लिया कि अब मैं इन भेड़ियों के सामने हार नहीं मानूंगी और अपने बच्चे की हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अगली सुबह मैंने अपनी सास से बड़े ही नॉर्मल लहजे में कहा कि अम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं कुछ देर के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ ताकि अपनी माँ से मिल सकूं। सास ने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं अब उनके मुकम्मल काबू में हूँ और जल्द ही सब कुछ भूलने वाली हूँ। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची तो मैंने अपने माँ बाप के सामने वो तमाम रिकॉर्डिंग्स चला दी जो मैंने छुपे हुए कैमरे से बनाई थी। वो सब देखकर मेरे घर वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हकीकत इतनी भयानक और खूनखार हो सकती है। मेरे वालिद साहब ने उसी वक्त अपने एक दरीना दोस्त को फोन करके बुला लिया, जो शहर के नामी ग्रामी SHO थे। जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनके माथे पर भी पसीना आ गया। मेरे पास इतना पुख्ता और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद था कि जिसकी बिना पर पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई की और मेरे ससुराल पर छापा मारकर उन दोनों माँ बेटे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान एक और लर्जा खेज सच का इंकशाफ हुआ, जिसने मेरी रूह तक फना कर दी। मेरे शोहर जाहिद का एक्सीडेंट कोई इत्तफाकी हादसा नहीं था, बल्कि मेरे सफाक देवर ने खुद अपनी निगरानी में गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे ताकि वो रास्ते से हट जाए और सारी जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। तफ्तीश की सख्ती के सामने असलम टूट गया और उसने अपना ये घिनौना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। उन पर केस चला और अदालत ने उन्हें उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ अपने माँ बाप के घर मुंतकिल हो गई। मैं अक्सर खिड़की के पास बैठकर यही सोचती हूँ कि जिन रिश्तों को मैंने और मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी समझकर बेइंतहा मोहब्बत दी, वही हमारी जान के दुश्मन बन गए। सिर्फ दौलत की हवस और लालच ने एक माँ को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पाले हुए बेटे को कत्ल करवा दिया और उसकी आने वाली मासूम नस्ल को भी मिटाने की कोशिश की। आज जाहिद की छोड़ी हुई सारी जायदाद कानूनी
قانونی طور پر میرے بچے کے نام ہے اور میں خود تمام کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا ہے اور اب میں اپنے بچے کی پرورش اس عزم کے ساتھ کر رہی ہوں کہ اسے ایک ایسا انسان بناؤں جو رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہو۔ زندگی اب پرسکون ہے، مگر وہ زخم آج بھی ہرا ہے جو اپنوں نے دیے تھے، جن پر ہم نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ اب میں جان گئی ہوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں بلکہ وہ خلوص ہے جو آج کل کے مادی دور میں نایاب ہوتا جا رہا ہے۔